कल मैंने आप लोगों को चेंज इन टेंस में कुछ डिक्टेशन दिया था, जिसमें लास्ट में ये बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। इफ reporting verb is in past tense, the tense of reported speech will change into past perfect tense. For example, you can see he said, comma, inverted comma, Ram went to Delhi. In this statement, he said that Ram had gone to Delhi. What are you getting? Here, went is in second form of the verb. Now, in indirect statement, it changes into had gone, means past perfect tense. This is the simple. Now some more rules of changes in tense there is found. First, the change of will. If your reporting verb is in past tense, then the will generally will change into would. In simple future condition, but if will direct to the request, direct to the order, in those cases, we change this will into should. Now, there is an example for both. दोनों के लिए एक उदाहरण देता हूँ। जब will का प्रयोग साधारण भविष्य काल के लिए है तो हम would में बदलते हैं, लेकिन जब will के प्रयोग से निवेदन या आदेश का बोध होता है तो हम will का should करते हैं। जैसा कि he said, the sun will come tomorrow. यहाँ क्या है? सिंपल फ्यूचर है। तो he said that the sun would come tomorrow. ... But if there is given, he said will you have a cup of tea? यहाँ क्या है? The statement is in interrogative sentence, but there is request. Will you have a cup of tea? Here the sense of request, and it may be, will you please have a cup of tea? This is also a request. Then इसको हम बनाएंगे कैसे? He requested to have
a cup of tea. But in simple sentence, according to interrogative, we can also change it. He said, no said, he asked. He asked if I should have a cup of tea. कप ऑफ टी। ये तो इंपरेटिव मोड में है और ये इंट्रोगेटिव मोड में है, क्योंकि ये सेंटेंस आपके निवेदन का भाव प्रकट करता है। पूछता है कि क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे, तो उस संदर्भ में यहाँ हम इंपरेटिव मोड में भी इसको इनडायरेक्ट बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव मोड में भी हम इसको इनडायरेक्ट बना सकते हैं। स्टूडेंट, यही बात शैल के साथ भी होती है। शैल के साथ हम जब वह सिंपल फ्यूचर मूड में रहता है तो शैल का हम शुड कर देते हैं। शैल को हम शुड के संदर्भ में लेते हैं। शैल को हम सिंपल फ्यूचर के संदर्भ में वुड के संदर्भ में लेते हैं। लेकिन जब वो रिक्वेस्ट रहता है, रिक्वेस्ट, तो ये शैल क्या हो जाता है, शुड हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे। ये सिंपल फ्यूचर के कंडीशन में वुड रहता है। जैसे टीचर सेड I shall come in next period। मतलब क्या है, सिंपल फ्यूचर है, यानी अगली घंटी लगते ही वो आएंगे। तो क्या हो जाएगा, टीचर सेड दैट he would come ... in next period। So student, you can see here, this is the simple future, but if there is request, now this is found in question but there is found request। जैसे I said, comma, inverted comma, shall I shut the door? Shut the door मतलब क्या हुआ, मैं दरवाजा बंद कर दूं? मैंने पूछा मैं दरवाजा बंद कर दूं, तो उस संदर्भ में क्या है, एक निवेदन किया जा रहा है, एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो हम इसको दोनों मूड में, इंट्रोगेटिव मूड में भी बना सकते हैं। आई आस्क्ड इफ आई शुड शट द डोर। या हम इंपरेटिव मूड में बनाते हैं, आई रिक्वेस्टेड to shut the door। Students, it was a special matter in the change of tenses। और भी है कि कुछ कंडीशन में बदलते ही नहीं है। If there is universal truth, the tense of reported speech will not change। If there is idioms and phrase, the tense of reported speech will not change। And in the same way, if there is conditional sentence, then we
never change the tense of the reported speech. Conditional sentence. Now the third matter is in general rule. The third matter is in general rule. Change in other parts of speech. Students, if reporting verb is in future or present tense, मतलब तो क्लियर है कि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में है, देन द वर्ड्स इंडिकेटिंग टू क्लोजनेस दैट विल नॉट बी चेंज्ड, उसे बदला नहीं जाए. बट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, तो नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स will change into distant meaning expressing words. नजदीकी सूचक शब्दों को हम दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं. With a column of chart you can see it. Direct, indirect, direct, indirect. Understand? So whatever found in direct sentence and whatever changed in indirect sentence, you can see. Okay, this that में बदल जाएगा, these will change into those, here, there, now, then, thus, so, hence, thence, thence, today, that day, now, tonight, that night, this day, that day. But it is clear that this will change into that. Okay, that day, this night, that night. Now students can understand tomorrow, tomorrow, tomorrow. tomorrow को हम कई अर्थों में बदलते हैं. It is changed into many. The next day, the next day, the following day, the following day, the on the morrow, on the morrow. In the same way, yesterday will change into two form. Yesterday,
यस्टरडे को भी बदलते हैं, क्या होता है द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, एंड द डे बिफोर, द डे बिफोर. Students can easily understand what is the sense of some other words. Last month, the previous month, last year, the previous year, last night, the previous night, last day, the previous day, the day before भी कर सकते हैं, the night before भी कर सकते हैं. अब उसी तरह नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ, यानी नेक्स्ट को हम फॉलोइंग में बदल देते हैं. कम का गो करते हैं और ए ईयर एगो का ए ईयर बिफोर करते हैं. मोहन सेड दिस इज माई बुक. एक बात यहां हम समझाना चाह रहे हैं इस प्रकार के उदाहरण से कि मोहन सेड दिस इज माई बुक. यहां दिस निकटता सूचक है, और एक बात और भी है कि जो दिस का प्रयोग जिस बुक के लिए किया गया वो प्रेजेंट में भी है, यानी बोलते समय भी वह किताब सामने है. दिस इज माई बुक. तो बात क्लियर हो जाती है. उसी तरह मोहन दिस मॉर्निंग शी सेड, दिस मॉर्निंग शी सेड क्या कि आई विल गो out today, I will go out today. तो स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड दिस मॉर्निंग यानी आज ही की सुबह. तो इन दिस कंडीशन हियर दिस को हम बदलेंगे नहीं, दिस ही रहेगा. यानी दिस मॉर्निंग शी सेड दैट शी वुड नॉट गो टुडे. ये संदर्भ है दिस का जिसे हम बदलते नहीं हैं. स्टूडेंट्स, इस प्रकार एक बात और जान लेने की है, एक बात और जान लेने की है कि नजदीकी सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है. अब बात आती है इसके बाद सेंटेंस होता है जनरल रूल के बाद स्पेशल रूल. दो ही रूल होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए बस दो ही रूल होते हैं और उसमें सब रूल पाए जाते हैं. तो दूसरा टॉपिक क्या है? स्पेशल रूल्स. और स्टूडेंट्स इस बात को जान लें कि स्पेशल रूल डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस. क्या है कि जनरल रूल सभी प्रकार के सेंटेंस में एक ही चेंज रखते हैं, लेकिन स्पेशल रूल हर प्रकार के सेंटेंस में अलग अलग नियम रखते हैं. ये क्या है कि जैसे सेंटेंस 5 होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, सेंटेंस, imperative, सेंटेंस और ऑप्टेटिव, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और पांचों में रूल्स थोड़ा सा भिन्न पाए जाते हैं. दे आर डिफरेंट रूल्स इन फ्रॉम फर्स्ट टू 5th काइंड्स ऑफ सेंटेंस. And they only effect to the reporting verb, inverted comma, basically. But change in pronoun, change in tense, change in other part of speech will according to
द जनरल रूल। अब इस विषय पर हम चर्चा आपको नेक्स्ट टर्म पर करेंगे, यानी कल स्पेशल रूल पर चर्चा होगी। ओके।